in Colombia. So Ladakh has so much of talent, and we have to grow them. At that time, Guru Rinpoche had the task of chasing her away or taming her. When I say taming, it is the prime objective in Buddhist philosophy of not killing someone which carries a negative feeling. The idea is to tame or make that person understand about the difference between the positivity and negativity. So in that process, the effort in the as told in the Buddhist philosophy is to tame or is to understand the positivity of the things or situation or feelings. So following that philosophy, Guru Rinpoche had the task of taming the demon. Once it is said that during one of that task, Guru Rinpoche had to run and he made the demon chase him. In that process, it is said that Guru Rinpoche hid under a huge rock, and the demon somehow managed to leap that rock and he missed him hiding out there. And that was the opportunity Guru Rinpoche grabbed, where he snatched the hair of the demon, and he could snatch actually some hair of her. And there to say that he could snatch her, grab her, and he actually made her control everything and to bow in front of him. And that is how it is said still. Our ancestors say that she is right now buried in one of the rivers here in Ngimo village itself. And when Guru Rinpoche grabbed and snatched some part of her hair, he threw it over the mountains out here. The hair itself is called Ralpa in Ladakhi, and that is how this place is known as Ralpa. And Ngimo is the place or the village nearby. If we go by the name of the village, it is again, it has three sayings of it. In Ladakh, we have villages, we have our own pasture ground for our livestock. So generally it is said that this Ngimo village was the pasture land or the dock of Basgo village. Since this place was near to Basgo, in Ladakhi we say, we use the word Ngimo, जो आज से संभव हो पा रहा है, उसके पीछे हमारे माननीय सांसद जी का हाथ है. ये बात जिस तरीके से हमारे सेक्रेटरी साहब के दिमाग में आया कि टूरिज़म को, विंटर टूरिज़म को कैसे प्रमोट करना चाहिए हमारे टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ साथ, तो इसमें माननीय सांसद जी का हाथ जिस तरह से पड़ा है, तो ये काम आरंभ होना संभव हो पाया है. एक बार फिर से लद्दाख आभार व्यक्त करता है माननीय सांसद जी का इस महोत्सव का आयोजन करवाने के लिए जो काम इनकी तरफ से हुआ है. साथ ही साथ भारत सरकार के माननीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी का जो साथ इनको मिला है, जो कि आगे आने वाले दिनों में हमारे इस महोत्सव के भाग बनेंगे. तो आप सभी का हम धन्यवाद. Salashkutkani Sarpalangyas, Nira Sangmala Department of Youth Services and Sports nang Department of Tourism Utila tak niske chokne dringi flag off ceremony yang na dring ne phalangata Khelo India Zanskar Winter Sports and Youth Festival 2021 wo dringi kane Honorable Chief Guest chakne tene chadars parte gozuk shkochonokju tene din mangye mangpik majua dringi ja skundon sonang skundon pa langyas la Department of Youth Services and Sports nang Department of Tourism niske chokne yang lanchik iga shkoches pa gasujenju welcome ju tukjeche julai. धन्यवाद श्री टाशिले. और अब मैं डायरेक्टर टूरिज्म लद्दाख श्रीमती कुंज संगमो जी से अनुरोध करना चाहूँगी आप दो शब्द कहें. श्रीमती कुंज संगमो. So it gives me immense pleasure to welcome you all for the first Zanskar Winter Sports and Youth Festival 2021, which has been initiated by the Department of Sports in collaboration with
Department of Tourism Ladakh. This has been the initiation of Honorable MP Ladakh, and we hope that this festival will not only help to boost winter sports in Zanskar, but it will also help to boost tourism attraction of more and more tourists in Zanskar area of Ladakh. So this festival is starting from today. It will last till 30th of this month, and we have exciting programs during this event. Honorable MP Saab and Honorable CC Saab is leading the Chadar Trek from here today, and the Department of Tourism is also contributing in this festival by organizing the Chadar Trek, the food festival, snow skiing, ice sculpture, and many other activities. So I welcome all the guests for this winter festival of Zanskar and hope that it will go a long way in promoting winter sports and attracting more and more tourists in Zanskar area of Ladakh. Thank you. ऐसे कार्यक्रम को करना बहुत बड़ा काम होगा, और इसको कार्यक्रम को लेकर हमारा डिपार्टमेंट और उसके साथ में पूरा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी एक्साइटेड है, और ख़ास तौर से जो यूथ का जो रिस्पांस है इस कार्यक्रम को लेके, जो लद्दाख के या ज़ंस्कार के जितने भी यूथ हैं जो एडवेंचर लविंग हैं, तो उनका काफ़ी इसमें पॉजिटिव रोल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये शुरुआत है सिर्फ, और इसमें हो सकता है हमसे कुछ कमियां भी रहें और हमसे कुछ गलतियां भी हों, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है, और सबके सहयोग से मुझे लगता है कि हम इसको अच्छा कर पाएंगे। और इसमें जो एक्टिविटीज़ हमने रखी हैं वो डे वाइज एक्टिविटी हैं। 18 से लेकर और 30 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा। इसमें स्पोर्ट्स की, एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें आइस हॉकी है, स्नो स्कीइंग है, या फिर स्नो बोर्डिंग, या फिर जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसमें रखी हैं। और उसके साथ में जो मिसलेनियस एक्टिविटीज़ टूरिज्म की हैं वो भी इसमें रखी गई हैं। तो ये एक पूरा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा जो भी टूरिस्ट जाएंगे उनके लिए, और ख़ास तौर से जो लोगों के लिए भी एक अच्छा अनुभव होगा कि वो टूरिस्ट को अपना एक्सपीरियंस करा सकें कि लद्दाख या ज़ंस्कार की जो खास चीज़ें उनके बारे में लोगों को बता सकें। तो मैं अपनी तरफ से माननीय सांसद महोदय और पूरी उनकी टीम को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने डिपार्टमेंट को मौका दिया इस काम को करने के लिए। और जितने भी ट्रैकर हैं जो इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं, आगे फ्यूचर में भी जाएंगे, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि ज़ंस्कार को एक्सपीरियंस करें, और जो डिफरेंट जो हिडन पोटेंशियल है हमारा एडवेंचर स्पोर्ट्स का या कल्चर का, उसको एक्सपीरियंस करें। और मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और आगे ये शुरुआत है, आगे हम डे बाय डे हम एक्टिविटीज़ हमारी होती रहेंगी, तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मेरी तरफ से आप सबको धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। पहली ज़ंस्कर यूथ फेस्टिवल, जो स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि अभी रविंदर जी ने कहा है, दी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो इस फेस्टिवल का यही था कि इसमें दो चीज़ें ध्यान में रख के इसका गठन हुआ है। जिस तरह से माननीय हमारे एमपी साहब और हमारे बीच में काफ़ी बार चर्चा हुआ था इसमें, मैं तो इतना ही कहूँगा, इस पूरे इस सब का जो मेन श्रेय जो है हमारे माननीय एमपी साहब को जाता है, जिन्होंने एक आइडिया के साथ इसका शुरुआत किया था। तो इसका बेसिकली इसका वही 2 ऑब्जेक्टिव्स के साथ किया था। एक तो ज़ंस्कर को प्रमोट करना, दूसरा लद्दाख एज अ होल एक टूरिज़्म, विंटर टूरिज़्म डेस्टिनेशन के और तौर पे जो है इसको प्रमोट करने के लिए। और स्पेशली इसमें जो पोटेंशियल जो हमारे पास अवेलेबल था ऑलरेडी, जिसको एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा था ठीक से, तो स्पेशली जो है आइस स्की के लिए जो है ज़ंस्कर काफ़ी अच्छा एक लोकेशन है। मेरे ख्याल से एक टाइम पे वहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेन टूरिस्ट के लिमिटेड एक्सेस थे, उनका विज़िट होता था और वहाँ पे आइस स्कीइंग वगैरह होता था। तो इस चीज़ को रिवाइव करना और एक कैलेंडर बनाना और इसको एक राउंड द ईयर जो है लद्दाख को एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन के तौर पे जो है एक सेल करने का एक ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है हमारे संसद एमपी साहब ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसमें बातचीत करके जो है इस बार इस फेस्टिवल का गठन हुआ है। तो मैं एमपी साहब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली खास किरण रिजिजू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा
कि आप ने इस फेस्टिवल को फाइनली जो है आपने सक्सेसफुली आज यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। तो मैं एक बार फिर आप सभी लोगों से यही धन्यवाद करना चाहूँगा, स्पेशली जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट और जो रविंदर जी के लीडरशिप में उनके जो नीचे काम करने वाले उनके जो ऑफिसर्स और जो तमाम कर्मचारी लोग थे जो इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में जो है इन्होंने अपना रात दिन करके फाइनली जो है इसको एक अच्छा सा शेप देने के लिए तो मैं एक बार फिर से जो है आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा और उम्मीद यही करूँगा कि ये एक कैलेंडर के तौर पे जो है आने वाले दिनों में जो है एक प्रॉपर तरीके के साथ इसका मार्केटिंग हो और इसको एक बड़ा एक इवेंट बनाया जाए। इस बार जैसे अभी कहा है कि उतना पहला था तो इतना मेगा इवेंट हो नहीं पाया, लेकिन जिस तरह से कोशिश किया आप सभी लोगों ने, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और स्पेशली लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट के तौर से आपको भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जो है एक सभी के एक पार्टनरशिप में इसको फाइनली जो है इस इवेंट का लॉन्च हो रहा है आज यहाँ पे। तो मैं एक बार फिर से जो है आप सभी लोगों का आज की इस फेस्टिवल में इस लॉन्चिंग के समारोह में शामिल होने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। इस खेलो इंडिया ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 के उद्घाटन समारोह में यहाँ पे उपस्थित, जिस तरह हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक विजन दिया आत्मनिर्भर भारत, उसी आत्मनिर्भर भारत के विजन पे माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों पे चलते हुए एक सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर लद्दाख, आत्मनिर्भर ज़ंस्कार, आत्मनिर्भर टूरिज्म लद्दाख में कैसे आयोजित किया जा सकता है, ऐसे दृष्टि को लेके हम सब मिलके एक कोशिश ये हुआ है आज, जो कि लद्दाख में पर्यटन काफ़ी लोग आते रहते हैं, अलग अलग सेक्टर के टूरिज्म यहाँ आते हैं और ख़ासकर समर में लद्दाख जो है एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पूरे दुनिया में बन चुके हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा है कि केवल एक सीज़न के लिए हमें टूरिज्म से हमें कमाना होता है और लोगों को एक एवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ केवल एक सीमित सीज़न को ही हम ऑफर कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे ध्यान में आया कि लद्दाख में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, कल्चरल टूरिस्ट, केवल ट्रैकिंग एंड हाइकिंग, केवल साइकिलिंग एंड बाइकिंग यहाँ तक सीमित ना रह के एक एडवेंचरस टूरिज्म, एक विंटर टूरिज्म किस तरह हम बढ़ावा देना चाहिए, तो ऐसे विचार करते हुए आज हम सब का कोशिश यही है कि पूरे 12 महीना लद्दाख में टूरिस्ट कैसे हम चला सकते हैं और पूरे 12 महीना टूरिस्ट चलाने के लिए हम क्या ऑफर कर सकते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग अपॉर्चुनिटी से इसको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, दुनिया के उस पैमाने पे हम कैसे ले जा सकते हैं, इसको मॉडर्न परसेप्शन में कैसे हम मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फर्स्ट एवर ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के विशेष रूप से टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट एंड यूथ डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएट लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डायनेमिक ऑफिसर्स, डायनेमिक ऑफिशियल्स और जितने भी जो वॉलंटियर्स जो इस काम में जुड़े हैं, जिनका योगदान इंडिस्पेंसिबल है। और बहुत सारे यहाँ पे अभी प्रवक्ता लोग इस पूरे आयोजन का श्रेय मुझे दे रहा था। मैं नहीं समझता हूँ कि इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए। इसका सारा क्रेडिट जो है हर एक व्यक्ति जिसने इसको बुनाई किया, सिंचाई किया और यहाँ तक ले आया,
हम सबको उन लोगों को सल्यूट करना चाहिए एंड क्रेडिट गोज टू देम। हमें बगैर क्रेडिट के भी हम वोट ले लेंगे, निश्चित रहिए। और इस विंटर फेस्टिवल का एक मेन उद्देश्य यह भी है, और इसका हमने ज़ांस्कार क्यों सेलेक्ट किया। और भी लद्दाख में बहुत सारे जगह है, लेकिन ज़ांस्कार में ये अपॉर्चुनिटीज है, ये फिजिबल है। ज़ांस्कार एक बर्फीला, एक दुर्गम, एक दुर्लभ क्षेत्र जो मानते हैं, और खासकर ज़ांस्कार के जो कड़क ठंड, जो ज़ांस्कार के बहुत कम लोग सह पाते हैं। और मुझे ज्ञात है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ज़ांस्कार के, इंक्लूडिंग ऑनरेबल काउंसलर, सरपंच भी बहुत कम लोग ज़ांस्कार में बैठना पसंद करते हैं। कोई जम्मू जाते हैं, कोई ले जाते हैं, अलग अलग जगहों पे विंटर में भाग जाते हैं। अगर मैं गलत ना हूं, शब्दों का प्रयोग गलत ना हो, तो मैं ये कह सकता हूं ज़ांस्कार के लोग, कुछ लोग ज़ांस्कार के विंटर को नार्क मानते थे, और इसी नार्क में से हमने स्वर्ग को ढूंढने की कोशिश किया है। और एक स्लोगन के साथ, ज़ांस्कार खेलेगा भी, ज़ांस्कार खिलेगा भी। जब ज़ांस्कार खेलेगा तो ज़ांस्कार खिलेगा। इस फेस्टिवल के खबरें सुन के लोगों में मैं ये सेंस कर पा रहा हूं, लोगों में इतना उत्साह है कि भाई इस बार ज़ांस्कार में कुछ हो रहा है। और जो ऑफिसर ज़ांस्कार में बैठते ही नहीं, वो ज़ांस्कार में आने लगा है आजकल। तो कितनी खुशी की बात है। और बहुत सारे, मैं ट्विटर पे, फेसबुक पे वीडियो अपलोड करते रहता हूं, आप सब ने देखे होंगे। ज़ांस्कार के छोटे छोटे बच्चे इस फेस्टिवल के उत्सव में आइस स्केटिंग के, स्नो स्केटिंग के प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उससे हमारे युवा पीढ़ियों में एक टैलेंट जगता है, दुनिया के साथ चलने के एक कोशिश होता है। और दूसरी तरफ रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए मेरे जानकारी में आया, ज़ांस्कार में होम स्टे का रजिस्ट्रेशन बहुत सारे हो रहा है आजकल, क्योंकि उनके ध्यान में यह आ गया है कि आने वाले सालों में ज़ांस्कार में इस विंटर स्पोर्ट्स के नाम पे बहुत सारे टूरिस्ट आने वाले हैं। तो उसको लेके रूरल टूरिज्म, रूरल इकोनॉमी, होम स्टे के माध्यम से हम बढ़ावा देना चाहते हैं। और इस बार बहुत कम समय में इसको हम इनिशिएट करना हुआ। तैयारी करने में शायद लगभग 15 दिन ही मिला, और इसमें इंडियन आर्मी ने, आईटीबीपी ने, पुलिस ने खासकर जो योगदान दिया, मैं सल्यूट करता हूं, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमें यह कामयाब हासिल करने में आप लोगों ने बहुत मदद किया, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे बहुत मुश्किलें होते हैं। लेकिन आने वाले सालों में हमारा विजन यह है कि इस 13 दिन की फेस्टिवल को क्यों ना 4-6 महीना तक हम चलाएं, इसका एक्सपेंशन हो प्रोग्राम्स का। फॉर एग्जाम्पल, इस बार मेडिटेशन इन योगा ऑन स्नो हो रहा है 1 दिन के लिए। आने वाले सालों में मेडिटेशन इन योगा ऑन स्नो पूरा एक 10 दिन का, 15 दिन का एक पैकेज हो। उसमें विपासना, आनापाना, बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ मेडिटेशन, जो अलग अलग तरह के मेडिटेशंस का एक पैकेज हम ऑफर करना चाहते हैं, रिट्रीट करना चाहते हैं। और इसको कामयाबी हासिल करने के लिए दुनिया में जितने भी मशहूर इंस्टीट्यूशन से जो इन चीज़ों में माहिर है, उन सबको कोलैबोरेट करके पूरी दुनिया में हम ये ऑफर करना चाहते हैं। गुलमार्ग के लिए विंटर टूरिज्म फेमस है, लेकिन आज अगर हम गुलमार्ग को पीछे मुड़ के देखें तो वहां क्राउड ज्यादा हो चुका है। कोई स्की करना चाहे तो स्की करने के लिए खुला जगह नहीं मिलते, लोग वहां पे इतना भीड़ हो चुके, लोग तंग आ चुके हैं। अब एक खुला, शांति, एक स्पेस हम ऑफर करना चाहते हैं। तो इसलिए ज़ांस्कार का जो स्नो स्की पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, आप लोग देखते रहना। दुनिया में जितने भी स्की इंस्टीट्यूशन है, उन सबको कोलैबोरेट करके नेक्स्ट ईयर से चाहे आइस हॉकी हो, स्नो बाइकिंग हो, स्नो स्की हो, इन सब का टूर्नामेंट होगा। 10-15 दिन का टूर्नामेंट चलेगा। दुनिया की जितने भी अच्छे अच्छे टीम्स है, वो सारा ज़ांस्कार में आके इन टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उससे ज़ांस्कार खिलेगा। अभी हमारा जो आइस हॉकी ज़ांस्कार में होने वाला है, आजकल भी जो चल रहा है, वो एक बेसिक स्टाइल ऑफ आइस हॉकी रिंग पे चल रहा है। आने वाले सालों में
बड़े पैमाने पे आइस हॉकी बना के, इंटरनेशनल लेवल के रिंग बना के, तो उस पे ये आइस हॉकी होना चाहिए। आज हम स्नो स्की की बात करते हैं, तो आज स्नो स्की को पीठ पे उठा के पहाड़ चलना पड़ता है, झोले में लंच लेके, फिर ऊपर जाने के बाद फिर वहां से स्की करके आएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में रोप वे के माध्यम से जाएगा ऊपर, फिर वहां से स्की करके आएंगे, हेली के माध्यम से जाएंगे, फिर वहां से आएंगे, तो लोग कमाएंगे। लद्दाख ज़ांस्कार तब जाके फेमस होगा, तब जाके ज़ांस्कार खिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे विजन्स के साथ हमने रिक्वेस्ट किया। पहला मीटिंग मेरा रविंदर सर से हुआ, उसके बाद माननीय एलजी साहब के साथ हुआ, हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट के चेयरमैन के साथ काफ़ी बार हमने चर्चा किया, खेल मंत्री माननीय किरण रिजिजू के साथ काफ़ी बार चर्चा किया। तो इन सबके अप्रूवल से, सबके सहमति से, सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से ये प्रोग्राम इतने बड़े पैमाने पे जो होने जा रहा है, इसके लिए मैं ज़ांस्कार वालों को तो बधाई दे ही रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ नाम ज़ांस्कार का रहेगा, लेकिन कमाई जो है लेह में जितने भी टैक्सीज, होटल्स, ट्रेवल एजेंट्स पूरे लद्दाख में है, सब कमाएंगे इससे आने वाले दिनों में। तो इसलिए अब सबके सहयोग भी जरूरी है। और जब मैंने ये प्रोग्राम एक्सपेंशन की बात किया, तो ये एक सेंट्रिक लोकेशन पे ही एक्सपेंड नहीं होगा। अब ज़ांस्कार में जब क्राउड होगा तो इसको लोकेशन से भी हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये ज़ांस्कार से लेकर धरास तक जाएगा। नुब्रा में बल्ती फेस्टिवल हम करने जा रहे हैं, चंगथंग में नोमेडिक फेस्टिवल हम करने जा रहे हैं, शाम में हम आर्यन फेस्टिवल करने जा रहे हैं। तो हमारे लद्दाख में अलग अलग तरह तरह की अपॉर्चुनिटी से ये सारा हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है, तब जाके ज़ांस्कार में 12 महीना टूरिज्म चल पाएगा। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि यहां से 3 दिन का ट्रैक करना है, उसमें से आज का दिन भी इंक्लूड है, तो यहां ज्यादा बोलते रहेंगे तो रास्ते में हमें दौड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने वाणी को यहां पे समाप्त करते हुए इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली एक शेप देने के लिए जुड़े हुए जितने भी ऑफिसर से, ऑफिशियल से, वॉलंटियर से, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और वाकई में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए आप सबका जो योगदान महत्वपूर्ण रहा है, आगे भी रहेंगे, ऐसे शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी ट्रैकिंग सर। नो सर, हैप्पी ट्रैकिंग। हमें बेस्ट ऑफ लक। चलो